Good morning, class. I'm Abhishek Tiwari, and I'm gonna take your probability chapter for today. So, let's start with the basic, which we have discussed already. That probability is nothing but number of possible or favorable outcomes upon by total number of outcomes. So we'll use this formula to solve all the questions today, and just with the use of this formula and some basic uh, general knowledge and some basic presence of mind, you can solve all the questions. We'll start first with the basic questions, like they are from, I'm using this R.S. Agrawal for class 10th, but so you can consider this book. This is quite a good book, so you can use this. And there are, the questions vary for this particular chapter. The level of questions are vary from 9th class to 10th class. Like both the student can solve these initial questions, but the question that I'll take from the exercise, that are for a little higher level. So I'll say both of 9th and 10th student can watch this video, but please make sure that I'm gonna tell you when it's over for 9th class students. So first I'm going to take example number 6. So in this, the question is card. It's given. I'll write what is given here and not the whole question. So example 6, we'll do a little bit faster this time because the concept is same and the questions are basic question. So cards numbered 11 to 16 are kept in a box. So 11 to 16 cards are in a box. Okay. Then if a card is drawn at random from this box, find the probability that the number on the drawn card is first an odd number, second a perfect square, and the last one is, sorry, the second last is divisible by 5, and the last one is a prime number less than 20. Okay, so let's start with, I'm not gonna write the same formula again and again, but you have to mention the very same formula when you are writing exams. So we have said that there are cards 11 numbered 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sorry, this is not 16, this is 60. My fault. And so on up till 60. So we are required to find an odd number card. How likely we can get an odd number card. So odd numbers are like 1, 3, 5, 7, 9 and so on up till the number line
as the number line to do. So we are said that we have to find the probability of an odd number from this very group. So we know that 11 is an odd number, and then 13, then 15. So we can do two things. So we can use arithmetic progression formula here, or we can easily see that there are from 11 to 60 there are if you count by fingers or by any means, you don't need तुमको 60 तक काउंट करने की जरूरत नहीं है. You can easily see that कि whatever is true for up till 20, that will be true for 30 also, 40 also, 50 also and 60 also. So सब में 10 का gap है, 10. So just for your convenience, let's count till 20. So 11 is an odd number. So out of 10 odd numbers, 10 numbers between this very range, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So 20. Out of this 10 numbers, 11 to 20, we have 11, 13, 15, 17 and 19 as odd numbers. So this is 1, 2, 3, 4, 5. So every set of 10 numbers, 11, 2, 20, every set of 10 numbers, there are 5 odd numbers. So we can directly assume that the number of the probability of odd numbers are exactly half, because 5 out of 10. So we can directly write the answer as 1 by 2, or we can just calculate all the 5s. So probability is number of favorable outcomes upon by total number of outcomes. So there are from 11 to 60, if you count, there are 50 number, and the favorable outcomes are 5 in 11 to 20, then 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and at last 50 to 60. So 1, 2, 3, 4, 5. So this comes out 25 upon 50, that is 1 by 2, 0.5 probability of the very same thing. And now let's move to the second part, a perfect square. Perfect square are somewhat like 2 का square, 4, 3 का square, 9. So for this very activity, this very part, you need to know the square of numbers till at least 8. So let's look at this very part. So we know that 4 cannot be included in this very range, 9 also. So after 9, 4 can be included, and then 4 का square, 5 का square, 6 का square, 7 का square. 8 का square is 64, which is not in this range. So we have 4 का square, 5 का square, 6 का square, 7 का square, only these numbers. So the numbers are 16, 25, 36 and 49. 1, 2, 3, 4, only 4 out of total 50. So this will come as, so you can easily solve this type of numerical expression in mind also, but for the sake, just cut this by 5, so you will get 10 and 0, put a point, then it becomes 40, 5 8s are 40, and because there is 10 also here also, so it comes out 0.08. Now the next one is
divisible by 5. So anything which is divisible by 5, we can also say that that is a multiple of 5. So multiple of 5, start, the first multiple of 5 in this range is 15 and the last is 60 itself. So we can again use AP, or I'll tell you how to use AP in the next very class, where I will discuss only a few questions, because that's for 10th class student and this is a basic question, so it's true for and maybe helpful for 9th class student also. So 15, 20 up till 60. So we know that 5 3s is 50 and 5 into 10 is 50, 11 is 55, 12 is 60. So the first one is 5 3. So we can easily count 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10. Only 10 numbers out of 50 falls in this very part. So that is 1 by 5, 0.2 is your answer. And now the last one is a prime number less than 20. So what are prime numbers? As we have discussed earlier in the very last class, prime number होते हैं जो that is divisible by 1 and itself only, like 2, 3, 5, 7, 11. So you need to know prime numbers. You can easily check also, but for the sake of your convenience, मैं कहूँगा कि you should know at least prime numbers till 50. अभी बहुत टाइम है, you can learn. So मैं लिस्ट बना के दे देता हूँ. Take a screenshot and learn that. So 1, 2, 3, 4, 5, 7. 2, 3, 5, 7, 11. Then 13 and 17 and 19 comes under this very category. So prime number तो चाहिए लेकिन 20 से छोटा. So how much total are they? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 out of 50. So हमें और थोड़ा सा माइंड यूज करें तो हमको और भी चीज़ें इजीली पता चल जाएगी. जैसे इन द वेरी सेम क्वेश्चन हमने निकाला था 4 by 50. सो 4 by 50 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 by 50 आएगा. सो जो आंसर ये है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज द वेरी सेम आंसर विच वी रिक्वायर. सो ये क्वेश्चन था. Oh, sorry. I forget one thing, that the group is only between 11 to 60. So we cannot include this. So only 4 numbers will be there. Same 4 by 50. The answer will be same as this, 0.08. I just got a little confused in this. I thought it is 1 to 60. So be careful. You can, if I can make this mistake, you can easily make this mistake in the examination also. So ये एक तरह से सबक भी हो गया सबके लिए. So let's move on to the next question. और इस बार थोड़ा और फास्ट लेंगे, because we also want कि जल्दी से क्लास खत्म हो जाए. So I'll try कि जितना छोटा हो सके उतना छोटा वीडियो है. So the next question is, let's take example 7 itself. So इसमें बोला है कि a box contain 100 red balls, 200 yellow balls, 50 blue balls. ठीक है. So
अब इसमें हमसे पूछा गया एक बॉल हमने रैंडम निकाला, फिर हमें पूछा गया सबसे पहले कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट, ये है एग्जांपल 7, इस बार डबल स्पीड से करते हैं। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेकंड है हमारा नॉट अ येलो बॉल। एग्जाम में नॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम लोग येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल दें तो क्वेश्चन गलत हो जाए। सो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में मार्क दिस, लाइक जो रेंज लिखी है और गिवन जो कंडीशंस हैं, 100 रेड बॉल है, 200 येलो बॉल्स हैं एंड 50 ब्लू बॉल्स हैं। टोटल अगर हम करें इसका आएगा 350 बॉल्स हैं टोटल। ओके, एंड नाउ neither yellow nor ब्लू बॉल, यानी कि ना तो येलो ना तो ब्लू। सो ऐसे क्वेश्चन से डील करना अभी मैं बताता हूँ, बहुत ईजी है, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं कि जस्ट दिमाग यहीं पे रख के करें तो हो जाएगा। अब ब्लू बॉल सिंपल है, 50 ब्लू बॉल्स हैं आउट ऑफ 350, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा 50, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 350, दिस इज 1/7। you will solve and get 0.142857 something, then but you don't need to write this, or you can just write 0.14, like 7 1 7, 700, then 7 1 7 3, 7 4 28, and so on it will go. So डिवाइड करके भी दिखा दिया मैंने। नॉट ए येलो बॉल, अब इस क्वेश्चन से डील करने के सिर्फ सबसे इजी मेथड है, यू कैन जस्ट क्रॉस, येलो बॉल नहीं चाहिए हमें, बचा क्या 100 रेड 50 ब्लू, तो 150 बॉल्स हो गए टोटल, 100 प्लस 50 is 150 upon the 350, that is 15/35, and 5 से कट करेंगे, 5 7 से 35, 5 is 15, so same into 3 times, so 14 1 14, 42 is 28, 14 3 is 42, तो 42 something आएगा, 0.42 can be your answer also। so एक बार हमने कर लिया उसके बाद इजी ही है, क्योंकि डिनोमिनेटर पे 350 हमेशा रहेगा, और एज वी कैन सी अगर किसी भी दो चीज़ का सम करें तो दैट इज divisible by 5 and 35 is divisible by 7। so अगर जितना हमें अगर divisibility पता है and factors पता है उतना हमारे लिए easy हो जाएगा। neither a yellow nor a blue ball, यानी कि अब हमें येलो तो हमने क्रॉस कर रखा है, अब ब्लू भी क्रॉस करना है, so just cross, write here 100R 200Y 50 blue and cross। सो टोटल थे हमारे पास 350 एंड फेवरेबल आउटकम हमारा 100, सो दिस इज नथिंग बट, अगर 5 से किया 5 से 35, 5 to the 10, 2/7, 0.28, see how easy this is। now without wasting time let's move to next question। वैसे ही बहुत लेट हो गया। now I am considering example number 10, the book is R.S. Agrawal, अगर किसी ने बस कर दिया हो नोट करना। so it says a bag contains, example 10 it is, एक bag, let's say this is the bag, इसमें है white ball है, ब्लैक बॉल है और रेड बॉल्स हैं ओनली। अ बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बैग, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। सो आई राइट न्यू कंसेप्ट, इजी है ये, बाकी क्वेश्चन जैसा ही इजी है बट जस्ट विथ अ लिटिल ट्विस्ट। सो इसमें लिखा है इफ बॉल इज ड्रॉन, बॉल हमने निकाली और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल, इसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो आ गई
3/10, ठीक है। नाउ अब उसमें लिखा है कि और ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई 2/5, ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो हमें पूछा है फर्स्ट हमारा है ना फाइंड, क्वेश्चन में ऐसे अलग अलग करके नहीं लिखा है, सेम लिखा है, बट फॉर योर ईज आई राइट फर्स्ट फाइंड probability of red ball. PR means probability of getting a red ball, and second is total number of balls. सब बहुत इजी क्वेश्चन है। एंड जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है कि ये 2/5 है और इट इज बेसिकली 20, सो ये बहुत इजी हो जाएगा इससे क्वेश्चन। सो लेट्स डू दिस। सो सबसे पहले लास्ट क्लास में मैंने बताया था अ वेरी गोल्डन रूल। ये दो ही रूल है यार इसमें, एक तो इसका वो फॉर्मूला एंड सेकंड इज कि अगर सिर्फ ओनली 3 चीज़ कंसिडर की गई है तो तीनों का प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो मिला के होगा 1। सो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज ऑलवेज 1। सो अब इसमें हमें ये पता हमें ये फाइंड आउट करना है। सो सिंपल इक्वेशन यूज करेंगे हम 1 माइनस PW माइनस PB, सो दैट इज PR आ जाएगा हमारा। इसमें हमें कुछ नहीं करना, 1 में बस बेसिक प्लस माइनस है। 3/10 माइनस 2/5, 10 हमारा LCM आ जाएगा क्योंकि 5 और 10 में 10 LCM है। सो 10 LCM है तो ये 10 माइनस 10 इट इज इटसेल्फ, और ये 5 है तो डबल हो जाएगा 4, यानी 3/10 आ जाएगी हमारी इसकी 3/10। इधर लिख देता हूँ मैं आंसर 3/10। अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इसमें ही कर लेंगे हम, दैट इज वेरी इजी क्योंकि हमें पता है 2/5 है ये, ठीक है। सो ये दे रखा है 2/5, जो प्रोबेबिलिटी है वो है 20 बॉल्स। हमें बॉल्स भी पता है और प्रोबेबिलिटी भी पता है। सो वी नो दैट probability is number of favorable outcome upon by total number of outcome। यानी कि जो फेवरेबल इस वाले क्वेश्चन में हमारा जो ब्लैक बॉल्स की जो ब्लैक बॉल्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारा फेवरेबल आउटकम है, यानी कि जो भी यहाँ पे होगा ये चीज, दिस इज टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। सो ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, but we know that is 20 because हमें number of black balls पता है। so 20 होना चाहिए था अपॉन बाय कुछ होना चाहिए था, तो सिंपल रेशियो यूज करेंगे अगर हम, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी दे रखा है। यहाँ पे x ले लिया हमने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो सिंपल x को सॉल्व करने के लिए x इधर जाएगा, we can directly cut 2 10s are 20 and 5x is equal to 50 आ जाएगा, और x उधर गया, ये 20 into 5 upon by 2 that is 10 is equal to 50। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारी इजीली आ जाएंगे 50। सो दैट इज योर आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि न्यू कर सकता है। डन। सो दिस इज नॉट हार्ड फॉर 9th क्लास स्टूडेंट, बट इफ यू वांट यू कैन डू, और एल्स you can skip also। Now let's start with the exercise because बाकी के examples are like this only, and बाकी सारे question if we cover from exercise तो वो ज़्यादा better रहेगा। and एक question मैं दूसरी वीडियो में बनाऊंगा, that is an important question, वो 11th 12th में भी अगर मैथ्स आप लोगे so उसमें भी काम आएगा, क्योंकि दैट इज इन योर 11th एंड 12th सिलेबस ऑल्सो। बट बाकी ये सब दैट इज जनरल बेसिक क्वेश्चन, ये सिलेबस में तो रहते हैं लेकिन आते नहीं 11th 12th में। सो लेट्स स्टार्ट विद आई एम डूइंग सेम बुक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 19 पेज नंबर 928। शॉर्ट आंसर पहले लेते हैं, देन विल मूव टू अ लिटिल हेवियर क्वेश्चंस। सो 5th है ये, we are given a letter of English alphabet is chosen at random. Determine the probability that the chosen
लेटर इज अ कॉन्सोनेंट. सो अगर किसी को नहीं पता, सो फॉर देम कॉन्सोनेंट मतलब अल्फाबेट में ए बी सी डी जो होता है जेड तक, उसमें से वॉवेल्स जो होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, इनको अगर हम हटा दें तो बाकी सब जो बचे दैट आर कॉन्सोनेंट्स. प्रॉपर डेफिनेशन इसकी ये होगी कि जिनकी अपनी साउंड नहीं होती है, लाइक बी एंड में ई आया, बट सिमिलरली ए का एंड साउंड भी ए ही है. सो दैट इज सम जी के यू नीड टू नो, बट अभी बता दिया ए आई ओ यू है वोवेल. सो यही नहीं होता टोटल. वी नो दैट 26 अल्फाबेट होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड. सो 26. एंड हमें पता है कि हमें 5 हमें नहीं चाहिए, तो बचे कितने 26 में से 21. सो 21 by 26 ये आंसर आ जाएगा. एंड यू कैन सॉल्व दिस ऑल्सो. ये ऐसे होमवर्क है, ये सॉल्व करके इस फ्रैक्शन की पॉइंट में वैल्यू निकालना जो भी आएगी. एंड दैट इज योर होमवर्क. प्लीज take a screenshot. Let's move on to the very next question. So next question is question number 11. Wait, let's take question number 7 also, क्योंकि easy है लेकिन एक अच्छा concept है इसमें. So 17th है. It says given क्या क्या है कि there were 12 डिफेक्टिव पेन. ठीक है, इनको उन्होंने गलती से मिक्स कर दिया 132 गुड पेन्स के साथ. ठीक है, अब इसके बाद लिखा है इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर इट इज डिफेक्टिव और नॉट. ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें पूछी हैं. इसमें बोला गया है कि उन्होंने एक एक पेन उठाया, देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी चेक की. सो हमें बोला है कि हमें फाइंड करना है फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड पेन एंड सेकेंड probability of a defective pen. So very simple, but so बहुत सिंपल ही है, but just for your sake. So PG. So basic point इसका ये है कि जो टोटल है उसमें हम इन दोनों को काउंट करेंगे, क्योंकि अगर किसी एक को भी छोड़ दिया तो हमारा टोटल पेन्स नहीं है. सो 132 प्लस 12 144 एंड गुड पेन आर 132. सो आंसर विल बी 132 बाय 144. ये भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा. आई कैन सॉल्व दिस. सो 72 33 अपॉन बाय 36 देन 11 upon by 12. So 11 upon by 12, you can now do this. So now next question 0.9 something आएगा. So because easily you can see that 132 है और ये सब 12 है. अब you can also, okay, let me solve this. 0.9 916 आ रहा है ऑलमोस्ट. सो अब हम इसमें दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. या तो 12 अपॉन बाय 144 करें, दैट इज 1 बाय 12, एंड जो आंसर है वो निकालें फिर से. और यू कैन सिंपली जस्ट माइनस 1.1 में से 916. सो यू विल गेट 0.084. That is your answer directly. So just इस ये पॉइंट बताना था मुझे कि ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो फास्ट एंड क्विक वे. और यू कैन क्रॉस चेक ऑल्सो विद दिस फॉर्मूला. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं.
A game of chance consists of spinning an arrow which is likely to come at two guests pointing to one of the numbers. So पहले ना 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो एक एरो है ऐसे, सो ऐसे एरो है, 12 नंबर है और हमसे पूछा गया कि ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये 6 पे स्टॉप होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक इवन नंबर पे स्टॉप होगा। थर्ड है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम नंबर पे स्टॉप होगा। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक मल्टीपल ऑफ 5 पे स्टॉप होगा। और लास्ट नंबर which is a factor of 8। तो इन सब की क्या प्रोबेबिलिटी है? So 6 वाले की प्रोबेबिलिटी we know that in इस पूरे गेम में सिर्फ एक ही 6 है। सो 1 आउट ऑफ टोटल डायग्राम में दिख रहा है कि 12 है, तो 1/12 प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था। इसका आंसर था 0.084। एंड नाउ एन इवन नंबर आर 2 4 6 8 10 and 12 also। So 12 का डाई है इवन नंबर एग्जैक्टली हाफ होंगे, तो 6 by 12 that is 1/2 is equal to 0.5। अब प्राइम नंबर हमने पिछले क्लास में देखा ही था, पिछले क्वेश्चन में देखा था 2 3 5 7 11 आर प्राइम नंबर। सो 1 2 3 4 5 by 12, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, you will get the answer something 5 was 20 0 2 5 8 are 40 0.420 will be your answer, multiple of it। now but you can see that कि यहाँ पे एक ये 5 है एंड ये 10 है, इसके अलावा और कोई मल्टीपल नहीं है। तो 2/12 is equal to 1/6, that is nothing but 0. 0.16 समथिंग आएगा। ये a number which is not a factor of, which is factor of 8 ना, या सो फैक्टर ऑफ 8 मैंने बोला कि ये फैक्टर्स अगर आप बताओ तो ठीक है, और यू कैन डू दिस टू नो द फैक्टर। सो ऐसे कॉलम बनाओ, ठीक है। नाउ किससे डिविजिबल है? सबसे पहले तो 2 से, 2 4 सा 8, 2 2 4, 2 1 सा 2। सो ये सारे फैक्टर्स हैं, तो 1 है फैक्टर, 2 है फैक्टर, 4 है फैक्टर, and 8 also is the factor। So 1 2 4 8 are factors, so 4/12 is equal to 1/3, 0.33 आ जाएगा ये आंसर। So take a screenshot। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो इस बार थोड़ा फास्ट है। अब वैसे अब 9th क्लास स्टूडेंट का यहीं तक था, अब इसके बाद थोड़ा हाई लेवल है। सो अगर मन है तो देखो, नहीं तो यू कैन स्किप दिस। नाउ a jar, so I'm gonna take question number 16। A jar contains marbles, 54 marbles, each of which, so हमें टोटल पता है 54 marbles हैं,
each of which some are blue, some are green. So हमें पता है कि blue marbles हैं, green marbles हैं and white marbles हैं. The probability of selecting, इसका probability PB हमें दे रखा है 1/3. Okay, and probability of getting a green marble is PG हमें दे रखा है 4/9. ओके, अब हमें पता करना व्हाट इज नंबर ऑफ W यानी कि वाइट मार्बल्स. सो बहुत इजी क्वेश्चन है. अगर देखें तो हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. इसको दो पार्ट में कर देते हैं, फर्स्ट सेकेंड. बहुत इजी है दोनों तरीके एंड बहुत क्विकली आंसर आ जाता है इसका. सो फर्स्ट तरीके में हम क्या कर सकते हैं, या तो हमें इजली हम 1/3 ये निकाल लें, देन 4/9 ये निकाल लें. 1/3 अगर प्रोबेबिलिटी है तो 1/3 और 54 ही होगा, तो 54 से मल्टीप्लाई कर दो 1/3. ये आ जाएगा 3 1 3, 18 मार्बल्स. नंबर ग्रीन, अब नंबर ग्रीन आ जाएगा 4/9 of 54, that is 9 6 are 54, 24 green marbles. So add this, you will get 24 34 42 marbles हो गए टोटल. प्लस इसमें वाइट मार्बल करेंगे तो टोटल हो जाएगा. तो टोटल हमें पता है 54 है. सो 54 minus 42 is equal to white marbles. सो वाइट मार्बल्स का नंबर आ जाएगा 12. ये हो गया हमारा फर्स्ट वे. सेकेंड वे है, हमें पता है कि सिर्फ ये 3 मार्बल्स है इसमें. सो टोटल इसका जो ये प्लस पी ऑफ W इज इक्वल टू 1 होगा. सो 1/3 प्लस 4/9 प्लस PW इज इक्वल टू 1. PW हम निकाल सकते हैं इससे. 1/3 और 4/9 को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इस साइड लेके आएंगे. सो एलसीएम हमें पता है कि 9 ही रहेगा इसका. 1 9 बन जाएगा माइनस 3 3 3 9, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा इसका. एंड 4 सेम रहेगा. सो 2/9 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा. अब 2/9 प्रोबेबिलिटी है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 54 से, क्योंकि 54 टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं. सो ये आ जाएगा 12. सो एनी विच वेज you can get the answer as 12. Now next question will be सो 18th देखने में थोड़ा लिटिल बिट ट्रिकी लग रहा है. सो लेट्स डू 18th. सो इसमें लिखा हुआ है कि अ बैग कंटेन 18 बॉल्स. हमें बॉल्स दे रखी है लाइक लास्ट क्वेश्चन, जिसमें से x हमारी रेड बॉल्स हैं का नंबर नॉट प्रोबेबिलिटी. फिर उसके बाद हमें फर्स्ट जो हमारा है वो है कि अगर एक बॉल हमने निकाली इसमें से, तो नॉट रेड की क्या P प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड क्या है. और सेकेंड है हमारा जो हमें निकालना है कि अगर हमने 2 मोर रेड बॉल्स हमने इसमें 18 बॉल्स में डाल दी, ये बैग में डाल दी, ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल विल बी becomes 9/8. ठीक है. The 9/8 times the probability of drawing red ball in first case. So
हमें क्या करना है, x फाइंड करना है इसमें। सो दोनों इजी है, इतना हार्ड नहीं है, बट सेकंड वाले में एक छोटा सा कंसेप्ट है। सो नॉट रेड बॉल, हमें पता है x रेड बॉल है, ठीक है। सो नॉट रेड जो हमारा फेवरेबल इवेंट है, वो अगर हम टोटल 18 है उसमें से x रेड बॉल है, तो कितने बॉल रेड नहीं हो। अगर थोड़ा सा सोचें तो यू कैन इजीली गेट द आंसर कि 18 में से अगर हम रेड बॉल निकाल दें तो बाकी के रेड बॉल नहीं होंगे। सो ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स अपॉन बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो कि 18 है। सो ये हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ऑफ नॉट अ रेड बॉल। ओके, सो वेरी सिंपल, जस्ट एक छोटा सा लॉजिक लगाना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है कि अगर हमने 2 मोर रेड बॉल्स, इसको हम उल्टा करने की कोशिश करते हैं, या फिर शुरू से समझते हैं। 18 बॉल्स थी, उसमें से x रेड बॉल थी, ठीक है। अब हमने तो एक टोटल रेड बॉल, अब 2 चीज़ होंगी ना हमारे, तो टेबल बना लेते हैं एक छोटा सा जिससे एक समझ आ जाए। पहले 18 बॉल्स थी जिसमें से x रेड बॉल थी, अब हमने 2 इसमें रेड बॉल ऑल डाल दी। अब 2 अगर रेड बॉल डाली तो वो भी बॉल ही है, तो अब हमारा जो टोटल है वो हो जाएगा 20। सो हमें बोला है कि जो प्रोबेबिलिटी है ये, इसकी इसमें जो प्रोबेबिलिटी है x + 2 जो हमारा फेवरेबल इवेंट है अपॉन बाय 20, क्योंकि टोटल 20 हो गया, ठीक है। ये बन जाता है 9/8 टाइम्स इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल इन फर्स्ट केस, x बाय 18 का ये बन जाता है ऐसे। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम सॉल्व करके इजीली आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 9 × 9, 9 × 2 = 18, ओके। नाउ सेम है तो 2 × 10 = 20, so it will be x + 2 8 times is equal to 10x, cross multiplication, simple, right? तो 8x + 16 is equal to 10x, okay. So 8x उधर जाएगा, 2x आ जाएगा 16, x आ जाएगा हमारा 8. So simple, right? But take a screenshot and इस वाले को ऐसे practice twice. बाकी सबको एक बार चलेगा, ऐसे क्वेश्चंस को 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आज ही देखा है वीडियो एंड आज ही प्रैक्टिस कर लेंगे, सो इट बिकम्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके। सो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बट इसमें एक कंसेप्ट है, ये भी न्यू कंसेप्ट है, बहुत इजी है, बट एंड ट्राई दिस इनटू 2 twice. सो इसमें लिखा है a bag contains balls, some balls with out of which x हमारे balls white हैं, then 2x balls जो हैं वो black हैं, एंड जो 3x balls हैं वो रेड है, ओके। सिंपल। सो टोटल बॉल्स अगर हम देखें बिना क्वेश्चन पढ़ ली, सो x 2x 3x, सो टोटल ऐड करेंगे तो हमारा 6x टोटल बॉल्स आ गए। नाउ इट इज गिवन दैट अ बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट अ रेड? फर्स्ट है नॉट रेड, सो फर्स्ट केस में, और सेकंड है हमारा वाइट। सो वेरी इजी, नॉट रेड, जैसा कि मैंने बोला था कि क्रॉस कर दीजिए। नाउ रेड क्रॉस हो गया, बच्चा क्या? वाइट एंड डब्ल्यू, सो 2x + x 3x आउट ऑफ 6x, x कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 0.5 इज योर आंसर। नाउ वाइट बॉल you can see x है, favorable outcome, and out of which total 6x है, यानी कि 1/6 is equal to 0.16 something. This is your answer.
सो ये भी हो गया, ये भी बहुत छोटा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था. नाउ ओके, अब नेक्स्ट क्लास में थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन लेंगे हम. ओके, नेक्स्ट क्लास में 5 और 6 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दैट इज अ लिटिल बिट हाई लेवल क्वेश्चन, और उसमें से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो मैं ऊपर लिख दूंगा. सो वो 11th 12th में भी काम आएगा. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड बेस्ट ऑफ लक. रिवाइज दिस thoroughly. Okay, thank you.